Hello, students. First of all, a very good morning to all of you. And today, in this chapter, we will complete our poem Tiger in the Zoo, poem number 3 from our book First Flight. And let's start the poem. A Tiger in the Zoo poem, and there are 5 stanza. Each stanza has 4 lines. Poet is Leslie Norris, and we will see the explanation of this poem and poetic device, rhyming scheme about the poet, and all. So let's start the poem A Tiger in the Zoo. First stanza is, first we will discuss the title A Tiger in the Zoo. As you can see the title, there is a tiger, and it is in zoo, not in jungle or forest. And the poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. We will see here in which stanza. There are 5 stanza. So which stanza we will see the tiger in jungle, and in which stanza the tiger is in zoo. And this poem is about a tiger, and tiger is suited to live in the wild rather than living in zoo. Poet is saying here in this poem that tiger should live in jungle, not in the zoo. And in this way he is comparing his habitat means resident, nivas, where he live. Okay, so start the poem. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet, quite in his quiet rage. In a very simple manner, first he is using for tiger stalks means follow in his vivid strips. Vivid means different colorful strips, the lines on his body. Okay, the few steps of his cage, and he takes few steps. He walks in his cage. The tiger in the zoo walks in the limited space provided to it in the cage, and it he takes a few steps. There are strips on his body which are quite prominent, very noticeable strips. हमने देखी है इसके स्ट्रिप्स कितनी नोटिसेबल, तुरंत हम समझ जाते हैं. इट्स पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट. दिस वर्ड वेलवेट यूज फॉर हिज पॉज. पैड इज यूज फॉर पॉज. पॉज मीन्स उसके पंजे. तो his paws are soft like velvet cloth, and quiet means there is no sound of his walking. जितना उसके पैट, उसके जो पॉज हैं, पंजे बिल्कुल वेलवेट की तरह सॉफ्ट है, क्वाइट है, तो बिल्कुल साउंड नहीं आता है उसके चलने का जू में, अपने केज में जब वो चलता है. इन हिज क्वाइट रेज मीन्स होता है एक्सट्रीम एंगर, वेरी वेरी एंग्री. इन हिज क्वाइट मीन्स उसका शांत जो गुस्सा है. अब केज में बंद है तो वो गुस्से में बहुत है. ओके, तो इस तरह से दिखाते हैं, बताते हैं. स्टॉक्स वो अपने स्ट्रिप्स जो उसकी अपने फॉलो कर रहा है अपने स्टेप्स को, और उसकी स्ट्रिप्स जो है उसकी बॉडी पे वो नोटिसेबल हैं, और उसके जो पॉज हैं बिल्कुल वेलवेट जैसे सॉफ्ट है, क्वाइट है, उसमें साउंड बिल्कुल नहीं आता जब वो वॉक करता है, और अपने वो क्वाइट रेज में है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में के साथ अपने जो है कदम रख रहा है, बट आवाज़ नहीं आती है. तो एज दे आस्क इन दिस सेक्शन कि कौन सा स्टेंजा में वो जू में है और कौन से स्टेंजा में वो फॉरेस्ट में है. तो इस स्टेंजा में हमारे जो टाइगर जी हैं वो कहाँ है, जू में है. नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 2. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो and sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. Now, he should be, होना चाहिए था. He should be lurking in shadow. Lurking means बिल्कुल एम्बिश, फिराक में घात लगा के जो बैठते हैं. इन शैडो मीन्स इन द शैडो ऑफ ग्रास, लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग लॉन्ग ग्रास के साइड में उसकी शैडो में छुप के घात लगा के बैठा होना चाहिए था. ही टाइगर
नियर द वाटर होल, जहाँ वाटर होते हैं, वाटर होल होता है लाइक कोई झरना, कोई तालाब। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ जहाँ से कौन आए, प्लम्प मीन्स फ्लैशी, मोटा ताजा, डियर पास निकले, जहाँ पे आए पानी पीने, और वो वहाँ पे उसके घात लगा के बैठे, ठीक है। बिकॉज जो डियर होते हैं उनका फेवरेट क्या होते हैं, प्रे होते हैं, शिकार होते हैं, ठीक है। PREY, प्रे मीन्स शिकार। तो इसीलिए ही शुड बी, उसको ऐसा होना चाहिए था। इन दिस सेंस दिस स्टेंजा क्या शो कर रहा है कि टाइगर कहाँ है, हमारे फॉरेस्ट में। स्टेंजा नंबर 3, he should be snarling around houses. Snarling means roaring, sound of tiger. उसको ऐसा करना चाहिए था घरों के आसपास, दहाड़ना चाहिए था, जो गांव में घर होते हैं, ठीक है, चारों ओर। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे, गांव में, गांव के जो घर होते हैं, ही शुड बी स्नैरलिंग देयर, उसको वहाँ पे स्नैरलिंग करने चाहिए था। एंड स्नैरलिंग मीन्स उसको वहाँ पे दहाड़ना चाहिए था। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, बेयरिंग मीन्स टू शो, टू अनकवर, एक्सपोज करने चाहिए थे। हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, ठीक है, अपने जो है फैंग्स, वाइट फैंग्स, फैंग्स मीन्स हियर इज टूथ, रूट ऑफ द टूथ, क्लॉज, उसको अपने क्लॉज, अपने फैंग्स शो करना चाहिए उन गांव वालों को डराने के लिए, टेरराइजिंग द विलेज। सो इन दिस स्टेंजा टाइगर इज ऑल्सो इन फॉरेस्ट, जंगल। नाउ स्टेंजा नंबर 4, but he is locked in a concrete cell. Now here हम फिर से आ गए जू में। He is locked in a concrete cell. His strength behind bars. Bars means ये सलाखें जो होती हैं, सलाखों के पीछे बंद है, वो कंक्रीट सेल है, कंक्रीट का बना हुआ जो उसका सेल है, रूम है, जिसमें उसको बंद कर दिया जाता है। Stalking the length of his cage, ignoring visitors. Stalking the length, सीधी सी बात है। और अभी वो कंक्रीट के सेल में लॉक्ड है, अब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी उन बार्स के पीछे ही लॉक हो गई है। जिस तरह से वो लॉक है, उसकी स्ट्रेंथ, जितना पावरफुल वो टाइगर है, उसकी वो स्ट्रेंथ भी लॉक है बिहाइंड दैट बार्स। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, एंड जो उसका केज है, उसकी जो लेंथ है, एक तरह से वो उसमें स्टॉक कर रहा है, वॉक कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उसको देखें, जस्ट इग्नोरिंग दैम। द टाइगर शोज नो इंटरेस्ट टू द विजिटर्स, ही कीप्स ऑन स्टॉकिंग, जस्ट स्टॉकिंग, अपना स्टॉक कर रहा है इन एंग्री एंड प्राउड मैनर, बिकॉज उसके अंदर जो पावर है उसको, उसके लिए प्राउड भी है और एंगर भी है, क्योंकि उसे बंद कर दिया इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ द केज। लेंथ माने जो कि कितनी कम लेंथ होगी उस सेल में जहाँ पे उसको बंद कर दिया गया, इस तरह से ये वर्ड यूज़ किए गए हैं। लास्ट स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब ये जो स्टेंजा है यहाँ भी वो जू में ही बंद है, बिकॉज वो सुन रहा है, ना कि जा पाता है बाहर। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. The poet again takes the reader to the cage. अब poets जो हमें फिर से ले जाते हैं केज की तरफ, यानी जू में ले जाते हैं, where the tiger is sitting in the cage and feeling very unpleasant, very restless. He hears, वो सुनता है, लास्ट वॉइस एट नाइट, जो लास्ट वॉइस है नाइट में, मतलब कि जो वहाँ पे कार्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पुलिस की कार्स पेट्रोलिंग करते हैं, वॉचिंग, जू अथॉरिटीज़ की जो होते हैं ना, तो उनको वो सुन रहा है, वो लास्ट वॉइस हो गया। एंड कोई इंटरेस्ट वो शो नहीं कर रहा है। एंड स्टेयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स, एंड स्टेयर्स देख रहा है विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, अपने ब्रिलियंट आइज से, शाइनिंग आइज से, दैट शाइनिंग स्टार्स को वो आसमान में देख रहा है। हियर वी फील, वी कैन नॉट से कि हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा सैड है केज में बंद है। तो ओके, द पोएट रेज अ मोरल इश्यू ऑल्सो हेयर, ही इंटेंड्स टू प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट द क्रुएलिटी ऑन एनिमल्स।
विच आर कैप्ट इन केजेस, जो एनिमल्स को केज में रखा जाता है, उनके प्रति क्रुएलिटी की जाती है, वो भी पोइट हमारा उस तरफ भी ध्यान लेके जाता है थ्रू दिस पोएम. एंड thus the poem ends up at the point where it had started. जहाँ से पोएम शुरू हुई थी, जू में जो हमारे टाइगर बैठे हैं वहीं पर ये एंड हो जाती है. लेस्ली नॉरिस. नाउ वी विल सी द पोएटिक डिवाइस ऑफ दिस पोएम. Now stanza number 1. First we will see the rhyming scheme, that is strips A and cage and rage is rhyming each other, so we will give it B, and quiet we will give it to C. A, B, C and B. This is the rhyming scheme of every स्टेंजा इन दिस पोएम. हर स्टेंजा की यही राइमिंग स्कीम है, ए बी सी बी. ए स्ट्रिप्स केज एंड रेज यहाँ पे राइम कर रहे हैं, वी विल गिव इट टू बी, एंड क्वाइट सी. This is the rhyming scheme for all the stanzas. And the other poetic device is first is assonance. Assonance में होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई भी वॉवल साउंड वर्ड्स के बीच में रिपीट हो रहे हैं. वॉवल साउंड ओके वर्ड्स में है बट कई रिपीट लाइन में वर्ड्स में बीच में रिपीट्स हो रहे हैं. लाइक इन फर्स्ट लाइन वी विल सी वॉवल साउंड इज आई is repeating in his vivid strips. Okay, I sound is repeating again and again, that is assonance. And another poetic device is consonance. Consonance, in consonance consonant sound is repeating in a line in words. For example, in same first line you can see s, in talks as, his as, strips s sound is repeating. So this is कॉन्सोनेंस, बिकॉज वर्ड्स के बीच में आए या स्टार्टिंग में आए साउंड है इस कॉन्सोनेंट का, तो कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होता है. एंड कोई सा भी वॉवल साउंड है वो वर्ड्स के बीच में आए, स्टार्टिंग में आए, लाइन्स में आए, कई बार आए, दैट इज एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच. ओके, एंड वन अनदर फिगर ऑफ स्पीच इज एंजम्पमेंट. एंजम्पमेंट में होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी लाइन के एंड में कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं होता है, वो लाइन स्टार्ट नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो जाती है. Okay, same sentence continue in second line, in continuing next line, that is called enjambment. Okay, so these are the poetic device of first stanza. Now second stanza, same rhyming scheme, A and B, C and again B. Grass and pass is rhyming same, that is why we give it to B. And now other poetic device, there is alliteration. Alliteration means 2 or 3 words में सेम कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्ट में हो, स्टार्टिंग में, नॉट मिड. ओके, तो प्लम पास. ओके, प्लम पास एक लाइन में 2 या 3 ऐसे वर्ड हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, दैट इज वी विल से इट alliteration. एंड इसमें आप और भी कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं अपने आप से भी कॉन्सोनेंट्स एसोनेंस, जैसे कि लर्किंग इन, इसमें आई का जो है हमारे एसोनेंस हो जाएगा ये, इस तरह से. द नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 3, सेम rhyming scheme A B C B. And I just want to say you that one figure of speech we forgot. He is using for tiger, and so that it is personification figure of speech where we give a human quality to natural things, lifeless thing, non-living things or animals. This is called personification. So here टाइगर को ही बोला गया है, ये personification है, and every stanza में ऐसा है ना. He should be snarling around houses edge, तो ही हो गया personification. एंड देन enjambment, यहाँ पे ये सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है सेकेंड लाइन में. हाउसेज एट द जंगल सेज, ऐसे भी हम इसको पढ़ेंगे, तो ये कंटिन्यू हो रहा है सेकंड लाइन में. एंजम्पमेंट फिगर ऑफ स्पीच है फर्स्ट लाइन में, एंड में कुछ कॉमा फुल स्टॉप, नो साइन इज देयर. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग हिज द विलेज. तो एक और इसमें फिगर ऑफ स्पीच है स्नैरलिंग. स्नैरलिंग मीन्स साउंड ऑफ एनिमल, साउंड ऑफ टाइगर, वेयर एनी साउंड ऑफ एनी नेचुरल थिंग्स वी कॉल इट ओनोमोटोपोइया.
ओके, जहाँ पर कोई भी साउंड होता है वहाँ पे ऑनमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होता है। एंड अनदर एसोनेंट्स एंड कॉन्सोनेंट्स भी है यहाँ पे, कैसे देख लेते हैं। आई साउंड इज रिपीटिंग इन दिस लाइन, बेयरिंग आई हिज वाइट हिज, कितने सारे आई इधर यूज हुए हैं। vowel sound repeating in a line made in the word, that is assonance figure of speech. And second one, here also I so many times, okay. S also repeating in this line, bearing his में S, his fangs S, claws S, और ये consonant है, consonant sound repeat होते हैं तो उसको consonance figure of speech हम कहते हैं। अगेन स्टेंजा नंबर 4 पर्सोनिफिकेशन है, ही है, सेम राइमिंग स्कीम है ABCB। एंड क्या है देखो, पहले तो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन कहाँ है, कंक्रीट सेल C, ओके। कॉन्सोनेंट कम्स इन स्टार्टिंग ऑफ एनी वर्ड्स, कॉन्सोनेंट साउंड आता है स्टार्टिंग में, C आया है, दैट इज एलिट्रेशन। एंड एक और एलिट्रेशन आप बताएं, देखें इसमें, बिहाइंड बार्स बी, ओके। एंड एसोनेंस कहाँ पर आया है, यहाँ पर आई साउंड देखिए रिपीट हो रहा है ना, इग्नोरिंग आई, विजिटर में 2 बार आई आया है, दैट इज एसोनेंस, वर्बल साउंड रिपीटिंग इन मिड और स्टार्टिंग इन अ लाइन। नेक्स्ट स्टेंजा एंड लास्ट स्टेंजा, he hears the last voice at night, he also personification figure of speech। and assonance we can see here in the line number 3, assonance में vowel of I vowels is repeating here with his brilliant। and enjambment also here, यहाँ third line में enjambment है, because there is no any sign, no full stop, no comma, तो यहाँ से enjambment हमारा हो जाएगा, line is continuing in next line, okay, same sentence continuing in next line, so this is called enjambment। and in this full poem students, पूरी poem में एक figure of speech को हम बोलेंगे, that is imagery। imagery is poetic device जो कि अपील करती है आपकी 5 सेंस को, जो कि आप फील कर सको। हमने पूरी उसमें फील क्या है, कैसे टाइगर के वेलवेट पॉज है, ठीक है, कैसे वो नाइट में बैठ के स्टार्स को देख रहा है, पेट्रोलिंग कार्स का साउंड सुन रहा है, कैसे जू में घास के पीछे छुप के घात लगा के बैठा है, दिस ऑल दिस थिंग्स कम्स इन imagery figure of speech। so in this sense we see these things, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris, poem, explanation, poetic device, rhyming scheme। Now about the poet, we will see here about the poet। Leslie Norris was a prize winning Welsh poet and short story writer है, ये Welsh poet है, Welsh। and until 1974 he earned his living as a college lecturer, okay। एंड उन्होंने जो भी प्राइज़ जो भी इन्होंने जीते हैं, दैट आर कैथरीन मैंसफील्ड मेमोरियल अवार्ड, AML अवार्ड, पोइट्री, वेल्श आर्ट काउंसिल अवार्ड, फिक्शन अवार्ड। एंड टुडे ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेल्श राइटर ऑफ द पोस्ट वार पीरियड। इस तरह से। एंड his collection of stories in like short story, poem, collected poems won so many prizes, उनके कई सारे प्राइज जीते हैं। वेल्श राइटर है ये, कौन हमारे, लेस्ली नॉरिस, WELSH, वेल्श राइटर है, वेल्श, ओके। इनकी नेशनैलिटी है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी सी द वेरी we complete this poem in very well manner। thank you for watching this lesson। I hope you all are very happy, healthy, safe at your home। thank you so much for watching this lesson। good luck, bye।